Next time onwards, I'll request you to lead the group. Like this time I'm leading, and next time you will lead, and others will repeat. Okay. In the meantime, 1 week time is there. You can learn this. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Everybody together. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhara Dhari. Yashodanandana Vraj Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, we start with this prayer, and then after it, we come to Bhagavad Gita. So this prayer every time we'll recite, which is there in the introduction. First page of introduction. In Hindi it is Bhumika.
I'll recite. You can recite along with me. Probably over a period of time you will learn. All these are pranam mantras, like pranam to our Guru, pranam to other Goswamis, pranam to Krishna, pranam to Radharani, pranam to Vaishnav, and then last. So, you need not to repeat, you can sing along with me. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Shri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. Thank you. Why do we raise hands during Hare Krishna? Surrender. Yeah, surrender to the Lord. Last time, which slide we stopped? Anybody remembers? प्राकृतिक वाला हो गया प्रभु जी. Sorry? प्राकृतिक वाला हो गया. प्रकृति हो गया. Third point. जो 5, these are 5 basic truths. भागवत गीता में 5 विषयों का दिया. ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म. ईश्वर भगवान है, जीव हम सब लोग हैं. ईश्वर जी, प्रकृति मीन्स हमारे सराउंडिंग जो सारा मटेरियल नेचर है, भौतिक प्रकृति जो भी हमें दिखाई देता है संसार में, दैट इज प्रकृति. अब काल एंड कर्म. तो ईश्वर हो गया, जीव हो गया, प्रकृति हो गया था, हाँ? काल हो गया. लास्ट टाइम वो किए थे, व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड भक्ति. अच्छा, रीजंस फॉर लॉर्ड कृष्णा's appearance. हाँ, कर्म भी हो गया था. अच्छा, ये कॉन्शियस भक्ति हो गया पूरा. हाँ, हो गया पूरा. ओके. चैतन्य महाप्रभु का भी इंट्रोडक्शन हम बता देना. हु इज चैतन्य महाप्रभु? आपने कितना में सुना है चैतन्य महाप्रभु का नाम? सबने सुना है? सबने सुना है. हु इज चैतन्य महाप्रभु? मायापुर में चैतन्य महाप्रभु. एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ये भी भगवान का अवतार है, बट ये भक्त के रूप में आए हैं. लाइक भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए हैं. ये हमको सिखाने के लिए कि भक्त को भक्ति कैसे करना चाहिए. तो भगवान ने हमारे जैसा रोल किया है, भक्त जैसा रोल किया है, और ये सिखाने के लिए आए कि भक्ति कैसे करना चाहिए. वो है चैतन्य महाप्रभु. सो ही इज ए कृष्णा हिमसेल्फ इन द मूड ऑफ राधा रानी. राधा के मूड में है लेकिन है कृष्ण है. तो एक कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ ये जो है चैतन्य महाप्रभु है. तो इनका जस्ट इंट्रोडक्शन. आप मायापुर जाएंगे तो या किसी दिन हम ग्रुप में भी जा सकते हैं. मायापुर जाएंगे तो एक तो फर्स्ट एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट टेम्पल है उसमें राधा माधव राधा कृष्ण है.
अष्ट सखी का है, बहुत सुंदर पिक्चर आपने देखा होगा, इसमें भी देख सकते हैं। राधा कृष्ण अष्ट सखी का, एंड देन उसके बाद जो है पंचतत्व महाप्रभु के साथ उनके पास में इस तरीके से। तो इसमें भागवत गीता में और इंट्रोडक्शन में है, उसी को हमने इस रेगुलर स्लाइड में करना है। भगवान से हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, भागवत गीता जो अल्टीमेटली हमको बताएगा, क्या लक्ष्य क्या बताएगा भागवत गीता के अंदर, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? Being spiritual. Being spiritual, okay. Perform your duties. Ultimate aim of Perform your duties. perform your duty. Ultimate to reach भगवान के पास To reach, पहुंचना, yes, or to reach Vaikuntha. to reach Vaikuntha, okay. connecting with God. Connecting with God, or Recognizing the supremacy of God. recognizing supremacy of God, or yes, all are right questions, but I'm expecting some more answers, an ultimate answer. Yes, सब सही है. What is the meaning of life? What is the meaning of life? Or To change your chetana. to change our chetna, change our consciousness, okay. Or It's mukti. mukti, okay. And जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोल दीजिए, जो भी है, no problem. Nothing is wrong. आपने जो बोला है सब लोग सही है, बट इसमें ये सब तो है ही सही, लेकिन जो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण प्रेम, और टू प्लीज द लॉर्ड. कृष्ण प्रेम और टू प्लीज द लॉर्ड, दैट इज अल्टीमेट. उसके अंदर मुक्ति भी आ जाएगा, जीवन की लिए जीने की स्टाइल आ जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस चेतना भी चेंज हो जाएगी. आपने जो सब आंसर बोले हैं वे आपने सब कुछ इसमें आ जाएंगे, इफ लॉर्ड इज प्लीज्ड. इसका एक छोटा सा श्लोक आता है, इस बुक में नहीं है लेकिन आगे आएगा. एक छोटा सा श्लोक है, इफ यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग, 3 वर्ड्स का श्लोक का एक पार्ट है, बहुत छोटा है बट इट इज शोइंग द अल्टीमेट थिंग. संसिद्धि हरितोषणम, 3 वर्ड है, संसिद्धि हरितोषणम. संसिद्धि मीन्स, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, संसिद्धि मीन्स गुड परफेक्शन, अच्छा परफेक्शन. संसिद्धि मीन्स perfection of life is Hari means भगवान, तोषणम means संतुष्ट करना है, प्लीज. इस श्लोक के भागवतम में है सम सिद्धि हरि तोषणम. इफ लॉर्ड इज प्लीज्ड देन all problems solved. हम ऊपर भी पहुंच जाएंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, वे ऑफ लाइफ भी चेंज हो जाएगा, चेतना भी चेंज हो जाएगी. सब कुछ जो भी आपने आंसर दिया सब उसके अंदर encompasses all these things है, ये सब उसके अंदर. if Lord is pleased. Unfortunately, Lord is not pleased with us because in this world we are trying to please this world, and in the process we are ignoring or neglecting the Lord. So He is not pleased the way we are living our life. If He is pleased, then our life will be full of enjoyment. Why? Because Lord is Satchidananda. I told you, Sat Chit Anand. Sat means eternal, nitya, हमेशा रहने वाला. Chit means full of knowledge, and Anand means who himself is in Anand, who himself is enjoying. And if we come into his contact, he'll also enjoy enjoyment. How we can get enjoyment? Just like a fire, agni mein. If you put anything, whether garbage
or yagya samagri you put into this, it will burn. It will burn. If you go near to fire, it will give heat and light. So similarly, Lord is pure and full of bliss, anand. So anybody going near to him will also get anand and jnana. Like going near to fire, you get heat and light. Winter में होता है ना, if you go to near to fire there, winter. So because it is the nature of fire to burn everything and to provide heat and light. This is the nature of fire. Otherwise, it will not be called fire, right? Similarly, it's a nature of Lord to burn all our sins. When we go near to Lord, it's nature of Lord to burn all our sins and to provide bliss and knowledge. Anand and nature. Okay? So now, how to reach this two-stage state? So there are 3 steps in that. In this there, ये दूसरे स्क्रिप्चर से लिया है. भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तिनस्य. वेदों में बताया गया 3 है. First we have to establish our relationship with Lord. संबंध. So first we should have संबंध ज्ञान. First step is to establish relationship. Second is to develop that relationship. Bhakti, that is called bhakti. So पहले क्या हुआ संबंध. Second is अभिधेय. अभिधेय means to develop the process or to develop that relationship. आ रहा है समझ में? Relationship. Then to know the process of developing that relationship. And third is ultimately prayojan. Ultimate aim of life is to reach to that prem, or now the relationship is completely developed, that is called Krishna prem. Now you have established that relationship. So first establishing the relationship, second developing that relationship, and now relationship is developed, so that is prem. That is how we'll get ananda pleasure. ठीक है? तो इसमें बोला गया वेद शास्त्र का है संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्ति संबंध भक्ति प्रयोजन इतना साधना. So just leave this if this is difficult. Then 3 steps are there. संबंध अभिधेय प्रयोजन. In English is called relationship, process of developing the relationship, and ultimate aim of developing the relationship or Krishna prem. These 3 stages. Now, currently, most of us are new, so we are trying to establish a relationship. Not yet developed, but trying to relation. So before establishing the relationship with anybody in material world also, in this world also, what we should have introduction about that person. We should know each other. That is how relationship is developed. So we are trying to understand the Lord. We are trying to know the Lord. Currently we are at the stage of which is stage there? Establishing, trying to establish the relationship. So in trying to establish the relationship, we have to know each other. So here, currently we also don't know ourselves. हम अपने आप को भी जानते नहीं. वो भगवद गीता के 2nd चैप्टर में सीखेंगे हम कौन है. अभी हमको हमारा परिचय पता नहीं. So we'll understand ourselves, we'll understand Lord, and then we'll try to establish the relationship. And after that, we'll 9th chapter में आएंगे तो how to develop that relationship. And once we reach to 18th chapter, we'll understand. Okay, now to some extent we have developed our relationship. Right? Understood all 3 stages. संबंध हिंदी में संबंध अभिधेय प्रयोजन. इंग्लिश में है establishing the relation, then developing the relationship, and then final stage
when we had developed the relationship. Our prime is this place. Any confusion, any question? किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. एक इंट्रोडक्शन में आया है. Next. Now. There are ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रोसेस है. पहले था वो रिलेशनशिप का था. नाउ टू एक्वायर द नॉलेज 3 प्रोसेस आर देयर. फर्स्ट इज इफ यू वांट टू नो एनीथिंग देयर. जैसे किसी को बोला जाए कि आपने कोई से कोई नया फ्रूट आ गया, पैशन फ्रूट, कोई नया फ्रूट है, पैशन फ्रूट है. नाउ उसके लिए आपको नॉलेज देने के लिए फ्रूट बता देंगे तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा या नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल कंफर्म ये फ्रूट जो है इसको पैशन फ्रूट बोलते हैं. ठीक है. सेकंड इज कि उसके बारे में गैस करना कि बताओ वो ऐसा पिंक कलर का होता है, दिस आओ फ्रूट ड्रैगन फ्रूट जैसा लगता है, समथिंग वो सारा बताएंगे तो उसको जो है उसके बारे में गैस करेंगे कि ऐसा ऐसा है अगर वो फ्रूट नहीं है सामने. थर्ड थिंग इज अगर कोई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा उसका, उस फ्रूट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना अलग में पिक्चर्स दे तो उससे भी हम समझ सकते हैं. तो ऐसे शास्त्रों हमको इस जगत में नॉलेज प्राप्त करने के लिए 3 है. नॉलेज पे 3 थिंग्स आर देयर. प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान एंड शब्द प्रमाण. पहले वर्ड्स को ध्यान देख लीजिए. प्रमाण किसी भी चीज के लिए हमको 3 चीज के प्रूफ से समझ सकते हैं. एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, या तो हम उसको डायरेक्टली देखें या गैस करें, इफ समबडी इज डिस्क्राइबिंग तो गैस करें. तीसरा है कि हम उसको प्रॉपर्ली सुने तब जाके उसको समझ सकते हैं. तो जो शास्त्रों को समझा जाता है, जो स्क्रिप्चर्स है, जो स्क्रिप्चर्स है लाइक भागवत गीता, भागवतम, ये कैसे समझा जाता है? शब्द प्रमाण से समझा जाता है. किससे जाता है? शब्द प्रमाण से. कोई बोलेगा भगवान दिखा दो, अभी हमसे कोई क्लास में बोलेगा प्रभु प्लीज शो अस गॉड, देन वी विल बिलीव कि गॉड इज देयर. तो अभी हम नहीं दिखा. इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. दूसरा गैस करने का बोलेंगे तो कोई कुछ भी किसी तरीके से गैस कर लेगा. कोई बोलेगा निराकार है, कोई बोलेगा ऐसा, अलग अलग गैस करने. बट शब्द प्रमाण जो है मीन्स जो स्क्रिप्चर में दिया है, अगर जो ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स, ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर मीन्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स मीन्स सड़क पे से कोई भी बुक कहीं पे किसी ने कहीं पे मंदिर के आगे कोई भी बुक मिल रही है, सड़क पे मिल रही है, उसको ले लिया कर ले, उससे नहीं. शब्द प्रमाण मीन्स ऑथराइज्ड टेक्स्ट, ऑथराइज्ड बुक्स जैसे भागवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ऑथराइज्ड बुक्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम उससे भगवान को समझ सकते. तो शास्त्रों को समझ, स्क्रिप्चर को समझने के लिए आपको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा नहीं देखने के लिए कि मेरे को फर्स्ट शो मी गॉड देन आई विल बिलीव, आई विल स्टार्ट बिलीविंग. सो भगवान बोलेंगे इट डजंट मैटर वेदर यू बिलीव और नॉट बिलीव, आई एम देयर. भगवान बोलेंगे तुमको विश्वास करना नहीं करना, लेकिन भगवान तो है. तो जो है प्रमाण में कौन कौन से प्रमाण है, प्रूफ है भगवान को मानने के लिए? पहला, किसी भी चीज में संसार में हम देखते हैं किसी भी चीज का हमको प्रूफ चाहिए, सामने दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. ठीक है. बाय ऑब्जर्विंग, बाय सीइंग. बट भगवान के केस में या भागवत गीता के केस में ये ट्रू नहीं. ये कहाँ का ट्रू? इस संसार की सारी चीज देखना है, मेरे बिल्डिंग बताओ, ये बताओ, देन सीइंग इज बिलीविंग. दूसरा गैस करते हैं, कोई चीज देखी नहीं है तो उसके बारे में गैस करते हो, दूसरा प्रमाण गैस या अनुमान. एंड तीसरा है शब्द प्रमाण मीन्स बाय हियरिंग. बाय हियरिंग तो स्क्रिप्चर भगवान के केस में जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, बाय हियरिंग इफ वी हियर केयरफुली
फ्रॉम बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स, जो प्रामाणिक शास्त्र हैं उससे सुनेंगे तब उसको समझ सकते। तो संसार में देखने के लिए हमको फर्स्ट और सेकंड से काम चल जाएगा। इससे सीइंग, बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, देखने से मिल जाएगा, गैस करने से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखने से भी काम नहीं चलेगा, गैस करने से भी काम नहीं चलेगा कि भगवान ऐसे भगवान ऐसे। वी हैव टू हियर फ्रॉम बोनाफाइड और ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स। ये वर्ड आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड है, ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर। प्रामाणिक, हिंदी में बोलते हैं प्रामाणिक शास्त्र से सुनना पड़ेगा। ये अभी हम सामने जो हमारी भगवत गीता है, ये प्रामाणिक शास्त्र जो भगवान कृष्ण, ऐसे ही भागवतम है, वेद व्यास जी ने लिखा प्रामाणिक शास्त्र, रामायण वाल्मीकि ने जो लिखा है प्रामाणिक शास्त्र, उनसे सुनेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को तो दिखाओगे तब मैं मानूंगा कि भगवान है, तो इसका डू यू एनी आंसर टू दिस? इसके लिए कोई आंसर है? आप आंसर दे सकते हैं? आपको दे सकते हैं। कितने लोगों ने गांधी जी को देखा है? नो। कितने लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को देखा है? कितने लोगों ने विवेकानंद को देखा है? नहीं। बट ऑल ऑफ अस बिलीव है गांधी जी थे कि नहीं थे? थे। श्योर? कैसे पता? बुक्स से, बुक्स से किया ना, सबको बुक्स से। विवेकानंद किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन बिलीव करते हैं सारा। सो जब देखा नहीं, उनको बिलीव करते तो व्हाई डोंट यू बिलीव इन गॉड? वो भी तो बुक्स में है। ओनली थिंग इज वो उनकी बुक्स, वो 60-70 साल पहले थे गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, ये 5000 साल पहले के, तो दोनों ही बुक्स में पुरानी हो गई। हो सकता है कि आज से 5000 साल बाद लोग गांधी जी बोलेंगे गांधी जी जैसे तो कोई व्यक्ति था नहीं ऐसा, या सुभाष चंद्र बोस था। तो लोग इसलिए बोलते हैं कि नो आई डोंट बिलीव, फर्स्ट आई हैव टू सी द गॉड देन ओनली आई विल बिलीव। सीइंग इज बिलीविंग, बिकॉज आई बिलीव इन सीइंग। मेरे को देखने को मिलेगा तब मैं, तो फिर गांधी जी को मानना चाहिए कि गांधी जी भी नहीं थे, विवेकानंद भी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, और भी जो हमने देखे नहीं सारे लोग नहीं। वी डोंट डू दिस, वी रीड द बुक्स और उसमें हमको मिलते हैं उनके पिक्चर। तो उसी तरीके से भगवान भी हैं और वो हमको उनके पिक्चर मिलते हैं, उनके बारे में सुनने को मिलता है। इसलिए बाय हियरिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स, प्रामाणिक शास्त्रों से सुन के हम भगवान के बारे में सारी चीजें पता लगती। तो इसलिए जो पहली स्टेप क्या थी हमने बताया था भक्ति में, ऊपर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, इससे पहले वाले में एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू नो ईच अदर। ठीक है, पहले एस्टेब्लिश कर नो ईच अदर। तो हम भगवान को इससे जानेंगे, किससे? भगवद गीता से जानेंगे, भागवत से जानेंगे, अपने को भी जानेंगे, सेकंड चैप्टर में अपने को जानेंगे, इसके बाद 9th चैप्टर ऑनवर्ड्स हम भगवान को जानेंगे, और फिर 18th चैप्टर तक हम जान जाएंगे कि कैसे हमको भगवान से रिलेशनशिप डेवलप करना। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, अब भगवान को जानने के लिए हम चालू करते हैं। भगवान की कितनी एनर्जी होती, कितनी शक्ति होती है? इनफाइनाइट, इन्यूमरेबल एनर्जीज ऑफ लॉर्ड होता है, बट उसमें से 3 मेन एनर्जीज जिसका हम डिस्कस करेंगे। 3 मेन एनर्जीज, ठीक है? जहां पे भी कोई डाउट हो इमीडिएटली पूछना, बिकॉज देन आफ्टर दैट वंस वी स्टार्ट ये सब चीजें बीच में आएंगी, श्लोक में आएंगी। भगवान की 3 शक्ति है मुख्य, अदरवाइज इन्यूमरेबल एनर्जीज, काउंटलेस एनर्जीज, इनफाइनाइट एनर्जीज, अनंत शक्ति है भगवान। अलग अलग शक्ति से अलग अलग काम लेते हैं भगवान। तो भगवान की जो 3 शक्ति है उनमें से एक भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, और उसको बोलते हैं भगवान की इंटरनल एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल। उसके कई नाम हैं, तो मैं पहले हिंदी में बताता हूँ। आध्यात्मिक शक्ति
या आंतरिक शक्ति, ये सब नाम है उसमें। लिखने के साथ साथ ध्यान देना, ये सब नोट्स मिल जाएंगे इसमें, भगवद गीता में आगे आप लिख भी सकते हैं, बट समझना भी जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति है या उसका दूसरा नाम क्या है, आंतरिक शक्ति या इंटरनल एनर्जी या इंटरनल पोटेंशियल। ठीक है, ये भगवान की एक शक्ति। दूसरी शक्ति है इसको, अच्छा इसका एक और नाम है सुपीरियर एनर्जी भी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी, ये आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति, इंटरनल पोटेंशियल, सुपीरियर श्रेष्ठ शक्ति। और दूसरी को बोलते हैं भगवान की बाह्य शक्ति या बाहरी शक्ति या एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल पोटेंशियल और इंफीरियर एनर्जी। इतने सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज कोई भी नाम आ सकता है। याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है। एक नाम बता दो ज्यादा अच्छा रहता, एक नाम बता दो ज्यादा अच्छा रहता, बट उतने नाम आएंगे तो एक एक नाम बता रहा। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, एक नाम याद रखना। ठीक है, एंड ये तो दो हुई। आई टोल्ड यू 3 एनर्जी है भगवान की। तीसरी है तटस्था शक्ति। तीसरी है तटस्थ शक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी। तीसरी है मार्जिनल एनर्जी। ये जब हम समझेंगे तो आगे भागवत गीता में सब आएंगे, श्लोक आएंगे सीधे। उस टाइम पे थोड़ा समझाना, हम आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम को उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी में बोलता हूँ, पहले अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और तीसरी है तटस्थ शक्ति। इंग्लिश में इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। ठीक है, समटाइम्स पोटेंशियल शब्द इज यूज। जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते होंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन में वो जब छोटी सी शीशी में देता है, उसमें वाइट बॉल शुगर कोटेड जो मेडिसिन देता है, उसमें थोड़ा स्पिरिट डाल देता है, अल्कोहल डाला देता है। उसको फिर वो देने से पहले कई बार 10, 15, 20 बार ऐसे ऐसे मिक्स करता है। उससे पूछो तो बोलता है इसकी पोटेंशियल बढ़ा, मतलब इसकी शक्ति बढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे क्या कि ज़्यादा पावरफुल हो, जितनी बार करता है, कई बार 20-25 बार करता है टाइम्स, उसको क्या मिक्स करता है तो उसकी पोटेंशियल बढ़ाता है, इंटरनल। इसलिए पोटेंशियल शब्द यूज करते हैं, बट एनर्जी पोटेंशियल एक ही। अंतरंगा शक्ति, बाहरी शक्ति एंड तटस्थ शक्ति या मार्जिनल। इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल। अब इंटरनल एनर्जी कौन सी? इंटरनल एनर्जी भगवान के साथ भगवान के धाम में रहती है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा मतलब होता है वेरी क्लोज। ठीक है, तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल एनर्जी, वो भगवान के साथ में रहती है। अगर उसको पर्सनल फॉर्म में किसी को देखना है, आप बोलेंगे उसको प्रभु उसका पिक्चर कैसा दिखता है? पर्सनल फॉर्म में देखना है तो राधा रानी, राधा कृष्ण के साथ जो राधा है वो उनकी अंतरंगा शक्ति। सीताराम में जो सीता है वो अंतरंगा शक्ति। लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है वो अंतरंगा शक्ति। ये सब एग्जाम्पल है अंतरंगा शक्ति, इंटरनल, जो भगवान के साथ ही रहती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अब दूसरी कौन सी है? बहिरंगा शक्ति या बाहरी शक्ति या एक्सटर्नल एनर्जी। वो भगवान से दूर रहती है। दूर क्यों रहती है? उसको भगवान ने बाहर का काम दिया। जैसे नॉर्मली औरतें, ऋषि के वाइफ घर में ज्यादातर स्पेंड करती टाइम, और जो मेन्स हैं वो बाहर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। बाहर का कोई काम होता है कि रिस्पेक्टेड के बाहर किसी से भी कुछ करना है तो वो काम करेंगे, घर का काम हम लोग संभालेंगे। ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी का ऐसे डिवीजन। एक्सटर्नल एनर्जी भगवान से दूर क्योंकि बाहर के काम, और इंटरनल एनर्जी अंदर के सारे काम करें, भगवान के पास में सारे काम।
और बीच में फिर तटस्थता शक्ति। अच्छा, एक्सटर्नल एनर्जी का एग्जांपल पर्सन, इंटरनल एनर्जी का तो एग्जांपल बता दिए, कौन पर्सन फॉर्म में कौन है पर्सनिफाइड? राधा रानी या सीताराम में से सीता, लक्ष्मी नारायण में से लक्ष्मी, ये सब भगवान की इंटरनल एनर्जी। अब भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, उसका एग्जांपल है दुर्गा देवी, काली देवी, अंबिका, भद्रकाली, ये सब जो ये है भगवान की बाहरी शक्ति, जो बाहरी काम संभालती। कौन सा काम संभालती है? बाहर का। अब ये अंदर और बाहर क्या चीज है? अंदर मतलब है देखिए, अंदर मतलब है स्पिरिचुअल, जो भगवान के साथ क्लोज रह रही, वो है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और बाहर मीन्स ये वाला वर्ल्ड, बाहरी मतलब ये वाला वर्ल्ड। हमारा वर्ल्ड बाहर है, भगवान के आसपास। जो हमने वो बड़ा चार्ट दिखाया था, उसको याद है आपको सबको? ये स्टार्टिंग में बताया था, या अभी फिर से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ उसको। बाहरी मीन्स हम बाहरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी भगवान की शक्ति इफेक्टिव है? एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। और अंदर भगवान के पास में कौन सी शक्ति है? इंटरनल एनर्जी। उसमें राधा रानी, राधा कृष्ण के साथ में राधा है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, राम के साथ में सीता देवी, ये सब इंटरनल। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब जो बाहरी जगत को देखती है। तो उनका हस्बैंड कौन है? वो किसके साथ में रहती है? जैसे पार्वती और दुर्गा एक ही है, पार्वती का एक्सपेंशन दुर्गा, शिव पार्वती, भव और भवानी, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को संभालते हैं। और इंटरनल वर्ल्ड को, उधर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन रहते हैं? कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इंटरनल मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक्सटर्नल मतलब ये भौतिक, ये संसार। ठीक है? तो जिनको इस संसार में रहना है और बार बार यही कहना, यही अच्छा लगता है, वो शिव पार्वती की पूजा, वो शिव पार्वती की पूजा। यहीं पे आना, यहीं पे जाना, आते रहना, जाते रहना, यहीं पे। जिनको आध्यात्मिक जगत में जाना है, वो राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इनकी पूजा। चॉइस सबके लिए दी। तो आप बोलेंगे कि तो फिर शिव पार्वती क्या नाराज होते हैं? शिव पार्वती उन्हीं का विस्तार है, उसी शक्ति का, भगवान के आंतरिक शक्ति का विस्तार है। आंतरिक शक्ति का विस्तार है दुर्गा देवी, जो बाहरी शक्ति के रूप में काम करती है, और भगवान के अंश का विस्तार है शिव जी भी, जो बाहरी वर्ल्ड को। ब्रह्मा जी क्रिएटर है, तो देवता के, क्योंकि जैसे बाकी सब देवताओं के अंश हैं। तो ये भौतिक जगत को बोला गया है दुर्ग, इट्स लाइक ए फोर्ट, FORT, फोर्ट मतलब किला, जिसको एक और शब्द है दुर्ग, दुर्ग भी बोलते हैं किले। तो किले की देवी कौन है? दुर्गा देवी। इस फोर्ट के अंदर, मतलब फोर्ट के अंदर बाकी सब हम लोग रहते हैं, उसके इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी। और उनके साथ में शिव जी है। शिव जी को भाव और भवानी बोलते हैं, इसलिए शिव दुर्गा देवी का दूसरा नाम भवानी। और इस संसार को बोलते हैं भाव सागर। आपने बचपन से सुना, घर पे एल्डरली लोग बोलते हैं, अरे भाव सागर से बाहर निकलना है, भाव सागर से बाहर। ऐसा सुना? भाव सागर से बाहर निकलना। भाव सागर मतलब ये संसार। तो अभी हम इस भाव सागर में हैं, और किसके कंट्रोल में है? किसके नियंत्रण में? डायरेक्टली दुर्गा और शिव और दुर्गा के, तो शिव और पार्वती के, शिव और पार्वती। तो जिसको यहाँ पे रहना है शिव पार्वती, जिसको यहाँ से बाहर निकल के जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, उसके लिए बाकी ये दुर्गा, इन्हीं के एक्सपांशन है। दुर्गा, काली, पार्वती सब एक ही है, इसी जगत के इंचार्ज, इन्हीं के अलग अलग रूप हैं।
तो चॉइस दे दी है, अब आपको विचार करना है कि यहाँ रहना है या इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, हरे कृष्ण। तुम्हें कॉल पे करो तो तुम क्लास में थैंक यू। समझ में आया ये सबको? अब आपको विचार करना है कि क्या करना है। यहाँ पे रहना है तो 84 लाख योनि में अलग अलग, यहाँ पे पाप और पुण्य काउंट होंगे, तो पाप और पुण्य के पाप, अगर पाप ज्यादा करते तो 84 लाख योनि में जो अलग अलग लगे, मैं आगे पिक्चर भी बताऊंगा कि एनिमल्स की लाइफ है, एक्वेटिक्स पानी में रहने वाले जीवों की लाइफ है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब लाइफ 84 लाख, और इंक्लूडिंग मनुष्य, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सब है ये 84 लाख योनि में। ये इस जगत की लाइफ, इसमें पाप करने पे ये होगा, पुण्य करने पे ये होगा, और इसके बाद जो है इसके आगे, और जिसको आध्यात्मिक जगत में जाना वहां पे एक ही लाइफ, डिवोटी की लाइफ, भगवान के साथ आनंदित होना। वहां पे दुख नाम की कोई चीज नहीं, नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज एंड नो डेथ। आध्यात्मिक जगत में यहाँ पे बर्थ भी है, ओल्ड एज भी है, डिजीज भी है और डेथ, और हैप्पीनेस भी है ऑन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो चॉइस आपको बता दी, अब आपको विचार करना है कि आपको कौन सी जगह रहना है, कहाँ अच्छा है। Just one question. Yes. तो फिर जो सुपीरियर आध्यात्मिक में तो उसमें गृहस्थ जीवन रहता है, बट विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड लाइक, हाँ, विदाउट मतलब वहाँ पे हस्बैंड वाइफ जैसा जीवन भी जीता है, बट वहाँ पे कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं होता है, मटेरियल डिजायर्स नहीं होता है। वहाँ पे सब लोग पैसे पहुँचते हैं, हैप्पीनेस से घूमते हैं, करते हैं, लोग आनंद में रहते हैं, और सब लोगों को ये ज्ञान रहता है वहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सबको ज्ञान नहीं रहता है कि कौन भगवान है, कौन कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर होगा, तो वहाँ पे सबको ज्ञान रहता है कि अगर वैकुंठ में जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान है, वहाँ के साकेत धाम में जाते हैं राम सीता हमारे भगवान है, या गोलोक वहाँ पे वृंदावन भी, वहाँ पे वृंदावन वहाँ पे जाते हैं तो राधा कृष्ण हमारे भगवान, वहाँ पे पूरा ज्ञान रहता है और सब लोग आनंद से रहते हैं वहाँ। और एक बार वहाँ जाने के बाद किसी को वापस यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, बट उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस है। वहाँ जाने के लिए थोड़ा यहाँ का जीवन में थोड़ा सेक्रीफाइस करना, इसलिए ज्यादातर लोग वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। वो इटर्नल हैप्पीनेस है, मतलब वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये होता है ना सब जगह, एग्जाम में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो अरे टीवी बन, ये बन, वो बन, पहले पढ़ाई करो, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके फिर जितना भी मर्जी टीवी देखते रहना कुछ। अभी हमको कोई रोक नहीं सकता कितने, लेकिन बचपन में रोकते थे सब, तो क्या करते थे उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करते थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एग्जाम के टाइम होने गए इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, बट किस लिए था? लॉन्ग टर्म में हम बेनिफिट करें, वहीं पे सब कुछ कर ले तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के लिए मटेरियल लाइफ में थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस, आगे चॉइस इज योर्स। हर बार भगवान हर स्टेज पे चॉइस दे रहे हैं, आपकी मर्जी, ज्ञान दे रहे हैं, इसके बाद अगेन यू टू डिसाइड, अगेन यू, हर स्टेज पे भगवान बोलेंगे तुम्हें डिसाइड करना, तुम्हें डिसाइड करना, तुम्हें डिसाइड करना है। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, जैसे हमने बताया ना कृष्ण प्रेम, जब तो प्रेम तो किसी को दो को खड़ा कर दे, चलो प्रेम करो, ऐसा फोर्सफुली तो नहीं कर सकते, तुम दोनों प्रेम करो, चलो अभी। इट इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय चॉइस। तो ऐसे भगवान से लव करना है तो लव इज बाय चॉइस, बाय ऑप्शंस, नॉट बाय फोर्स।
इसलिए भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते और सबको फ्रीडम दे रखी है। आप मेरे को अब्यूज कर दो, आप मेरे को लव करो, अब्यूज करो, ये करो, इग्नोर करो, केयर करो, कुछ भी करो, आपको खाना पीना मिलता रहे। ठीक है, बहुत ही जगह में अगर कोई एम्प्लॉय को रखेगा, फैक्ट्री में रखेगा तो बोलेगा नहीं काम करना पड़ेगा, नहीं तुमको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा भगवान फोर्स नहीं। तो जब इसके कारण क्या है कि ज्यादातर तो लोग बोलते हैं कि लॉर्ड ने इतना फ्रीडम दे रखा है, इतना फ्रीडम देखा जाएगा, कभी बुढ़ापे में देखा जाएगा, यंग स्टेज में क्या करना है देखा, उस टाइम पे देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने छूट दे रखी है। जैसे बच्चे को हम छूट नहीं देते हैं जनरली, कुछ न कुछ उसको किसी चीज में एंगेज रखते हैं। अगर छूट दे दिया तो एक बार बिगड़ गया तो बाद में फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। जो भी हो, जिस भी तरीके से कंट्रोल करें, मतलब टाइम के साथ साथ तरीके कंट्रोल करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। पहले एक मार के स्लैप करके करते थे, आजकल मार के नहीं करते, दूसरे तरीके से करना पड़ता है। पहले एक देसी तरीका था मारा और कंट्रोल करना, लेकिन अभी वो नहीं, बस अभी कोई भी दूसरे तरीके होते हैं। तो इसलिए भगवान फोर्स, तो भगवान की ये शक्ति है तीनों, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन है? हम लोग जो है भगवान की तटस्थ शक्ति। मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में बता दिया आपको, एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में बताया, तटस्थ शक्ति जो मार्जिनल है दोनों के बीच की। हम लोग जो है भगवान की तटस्थ शक्ति, जिसको बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी या मार्जिनल पोटेंशियल। जीव जो है, हम जीव, इस संसार में रहने वाले सारे लोग जो लिविंग हैं सब जीव, ये तटस्थ। तो तटस्थ शक्ति के पास, हम जो तटस्थ शक्ति, हमारे पास में चॉइस है कि हमको इंटरनल एनर्जी का हाथ पकड़ना है या एक्सटर्नल एनर्जी का। करेक्ट? समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्लास तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास तक मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास तक एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्लास तो इधर से या एक्सटर्नल एनर्जी को पकड़ सकते हैं हाथ, इंटरनल एनर्जी को पकड़ सकते हैं एक्सटर्नल, या इसको ऐसा समझ सकते हैं तटस्थ मतलब होता है जो तट पे खड़ा है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तट मतलब होता है बैंक, उसका किनारा। ठीक है, तो एक तरफ वाटर है और एक तरफ लैंड है, भूमि है, एक तरफ जल। तो कोई धक्का दे देगा तो वाटर में गिर जाएंगे, और इधर खींच लेगा कोई तो लैंड में। वी आर ऑन द बैंक ऑफ द, तट पे, इसलिए इसको बोलते हैं तटस्थ। स्थ मतलब होता है स्थित, तटस्थ। एक एक शब्द का मीनिंग, इसमें पूरे में स्पिरिचुअल में कहीं भी कोई वर्ड का भी मीनिंगफुल है, कोई भी वर्ड मीनिंग ऐसा मीनिंगलेस नहीं है। ठीक है, मीनिंगलेस कुछ भी नहीं, हर चीज का मीनिंग है, बिना मीनिंग की कुछ भी चीज नहीं। कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। जैसे पहले जो भी नाम रखे थे, जिसके भी रखते थे, तो उसका नाम सबके नेम से रखते थे, मीनिंगफुल होते थे। चाहे भगवान के नाम हो, देवता के नाम, या संत के नाम हो, इसके नाम, जैसे किसी के नाम मनोज है, सरोज है, ऐसा, तो उसके भी नाम है। अभी क्या है, कुछ भी टीटू मीटू नीटू कुछ भी रख दिया तो उसका कोई मीनिंग निकलता नहीं, ऐसे ही रख दिया मीनिंग। लेकिन स्पिरिचुअल इसमें सब कुछ जो है मीनिंगफुल, बाकी सब मीनिंगलेस ना। तो इसलिए यहाँ पे ये तटस्थ शक्ति है, हमारे पास चॉइस दी है भगवान ने, और चॉइस बहुत क्लियर है। यहाँ रहना, यहाँ पे भी रह सकते, और इसको क्रॉस करके, भावसागर क्रॉस करके, कि हमको ये बार बार ओल्ड एज नहीं चाहिए, हमको डिजीज नहीं चाहिए, हमको डेथ नहीं चाहिए, बार बार चाहिए, तो फिर स्पिरिचुअल सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में से इटर्नल है, नित्य कभी नष्ट नहीं होता है, और दूसरा जो है वो चित्त में फुल ऑफ नॉलेज है। वहां पे नॉलेज है कि कौन हमारा कंट्रोलर, कौन है। यहाँ पे नॉलेज नहीं है। जो एम्प्लॉयर है वो किसको मानता है? एम्प्लॉयर को अपना कंट्रोलर मानता है, किसी देवता को मानता है, किसको मानता है, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाता है कि भगवान क्या है, क्या समझ ही नहीं पाता। लेकिन स्पिरिचुअल फुल नॉलेज, सत चित, चित मीन्स फुल नॉलेज, सत मीन्स इटर्नल, हमेशा रहने वाला, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मीनिंग।
एंड मटेरियल वर्ल्ड का मीनिंग है, मटेरियल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन हमने बताया था, किसी को याद है लास्ट क्लास में? एक मटेरियल वर्ल्ड का श्लोक में से बोला था कि ये वाला इसका इंट्रोडक्शन, जैसे कहीं पे जाते हैं ना, जैसे कहीं पे लिखा है वेलकम टू आईटीसी, वेलकम टू जेडब्ल्यूएम, वेलकम टू ताज, ऐसा लिखा रहता है। यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में संसार के लिए एक बाहर प्लेट लगी हुई, हम देख नहीं पाते, नेम प्लेट भी लगी हुई। वेलकम टू दुखालय शाश्वतम बोला था, दुखालय शाश्वतम, वर्ल्ड फुल ऑफ, वेलकम टू दिस प्लेस व्हिच इज फुल ऑफ मिजरीज एंड व्हिच इज टेम्पररी, ये इसका इंट्रोडक्शन, ऐसा नेम प्लेट लगी। ये भागवत गीता में कहाँ लिखा है? भागवत गीता श्लोक नंबर 8 चैप्टर का 15 श्लोक देख लीजिए, फिर से याद आ जाएगा। 8.15 हाँ, 376 पेज नंबर सबका लगेगा। 8 चैप्टर 15 श्लोक के लास्ट पहले लाइन के लास्ट 2 वर्ड्स, सीधे ऊपर देखिए श्लोक और चैप्टर श्लोक ऊपर से देखिए, ऊपर टॉप पे, पेज के टॉप पे 8.15 मिल गया सबको? मैं इसको पढ़ूं? चलिए रीड, श्लोक को मिल गया सबको? मिल गया 8.15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम, ये इसका इंट्रोडक्शन। दुःखालय ये जगत क्या है? नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमत, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं। ये इसको क्या बोला गया है? इस जगत को क्या बोला गया है? दुखों से पूर्ण, और अनित्य मींस टेम्परेरी। करेक्ट? हाँ, सबको इसको याद रखना जगत का इंट्रोडक्शन। सो लाइक वेलकम टू आईटीसी, वेलकम टू जेडब्ल्यू, वेलकम टू ताज, और सिमिलरली वेलकम टू दिस दुःखालय, प्लेस ऑफ मिजरी एंड टेम्परेरी। करेक्ट? इंट्रोडक्शन खाली भागवत गीता ही बता सकती है, हमें किसी ने बताया नहीं होगा। सो इसलिए, और उस प्लेस का नाम क्या बताया? तो उसका शॉर्ट में बोलना है सच्चित आनंद, स्पिरिचुअल। इधर का दुःखालय शाश्वत, और बीच में कौन है? हम हैं। डिसाइड, डिसीजन किसको लेना है? चॉइस किसको दिया हुआ है? हमें। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट 30, 40, 50 इयर्स में जो भी है, जिसका जो है, हमने इस जगत का इंट्रोडक्शन काफी ले लिया है, सबने लिया होगा। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को इस जगत का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई ऐसा है कि जिसमें सभी लोग 30, 40, 50 जिसमें इस जगत का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब थोड़ा उधर का भी देख लेते हैं, भागवत गीता के द्वारा थोड़ा उधर का भी सुन लेते हैं, उधर का भी देख लेते हैं, दोनों का पता लगेगा, तभी तो हम चॉइस कर पाएंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना है, दोनों का। अभी तक हमें अनफॉर्चुनेटली इतने साल हो गए, हमने अभी तो उधर का इंट्रोडक्शन हमें ज्यादा पता नहीं लगा। लोगों ने बोला भगवान है, लेकिन उधर का इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो आगे जो भी हम करेंगे भागवत गीता में करेंगे, उस जगत का भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चॉइस देना चाहिए सबको चॉइस देना चाहिए दोनों जगह का देखने के लिए। इधर का तो देख लिया, जिससे भी जितना एज के हिसाब से जितना देखना होता देख लिया होगा, और बाकी देखना तो जो बड़े बूढ़े हैं और भी जो ओल्ड एज वाले हैं उनसे वो कुछ लेना, बाकी का बता देना। लेकिन अब सफिशिएंट देख लिया। अब उधर के वर्ल्ड के लिए तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये है, और इस शक्ति के और भी नाम है, मैंने और नाम नहीं बताया शक्ति के, बहुत ज्यादा चॉइस हो जाएगी। जैसे इंटरनल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति भी बोलते हैं, और जो भौतिक शक्ति, यहाँ की शक्ति को अपराशक्ति भी बोलते हैं, और हमारा भी एक नाम है जीव शक्ति भी। तो बहुत सारे नेम्स हैं, एक एक करके धीरे धीरे परा और अपरा। इसको याद रखने की परा मीन्स बोलते हैं ना परे जा, ऐसे, तो उसको याद रखने की परा मीन्स ऊपर वाले, और उसका उल्टा हो गया अपरा शक्ति, यहाँ की शक्ति को, और बीच में हम जीव शक्ति। ठीक है, अब फिर आगे अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की ऊपर वाली शक्ति को समझना है, तो उसके अंदर 3 पार्ट हैं। ये जो मैंने बताया सच्चित आनंद है, जो सच्चित आनंद है ऊपर वाले बताया, ऊपर का इंट्रोडक्शन। तो सत मतलब होता है भगवान की संधिनी शक्ति,
चित्त मतलब होता है भगवान की संवित शक्ति और आनंद मतलब होता है आलादनी शक्ति। तो अभी हमने डे फॉर यस्टरडे राधाष्टमी मनाई, वो भगवान की आलादनी शक्ति आनंद है, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसमें से आलादनी शक्ति वो भगवान को भी आनंद देती है और इस जगत को भी आनंद देती है। अगर कोई उनके कांटेक्ट में किसी का उनसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए तो भगवान को, जो राधा रानी है, राधा है या सीता या लक्ष्मी जी है, ये सब आनंद देने वाली शक्ति है, वो भगवान को भी आनंद देती है और इस जगत को भी आनंद देती है। बट वन शुड हैव रिलेशनशिप विद एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, वही भगवान से और भगवान की शक्ति से रिलेशनशिप। सत मतलब संधिनी शक्ति, चित मतलब इसको आगे हम देखेंगे। तो ये जो है भगवान की आलादिनी शक्ति, मतलब ये है कि भगवान के दो होते हैं, इसी से दो शक्ति निकलती है, एक प्योर लव ऑफ गॉड प्रोवाइड करती है और एक एडल्ट्रेट लव ऑफ गॉड है। तो इस जगत में जो लव है वो एडल्ट्रेट है, एडल्ट्रेट उसमें मिक्सिंग है, और इधर का लव जो है ये प्योर। सो आध्यात्मिक जगत का लव इट इज लाइक ए गोल्ड, और भौतिक जगत का लव इट इज लाइक आयरन। अब आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि गोल्ड का यूज करते हैं काफी, तो गोल्ड और आयरन में क्या अंतर है। तो इस जगत का लव जो है इट इज लाइक आयरन, लोहे के समान, एंड आध्यात्मिक जगत का लव इज लाइक ए प्योर गोल्ड। ठीक है, ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाए हम। हाँ, अब भगवान के बारे में इतने सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, आप में से कुछ लोग कुछ इंस्टीट्यूशन में पहले गए होंगे, अभी इधर आए होंगे, उससे पहले भी। ये किस आधार पे लोग भगवान को समझ क्यों नहीं पाते? आप में से कितने लोग अलग अलग जगह गए होंगे, कुछ कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान को समझने के एक्चुअली कई लोग भगवान को निराकार मानते हैं, कई लोग भगवान को साकार मानते हैं, कई लोगों को समझ ही नहीं आता है कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें कुछ। तो भगवान को समझने के लिए एक जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट, 3 लेवल है। जो लोग भगवान को निराकार समझते हैं, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, लास्ट पेज में, जो लोग भगवान को निराकार समझते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट नॉलेज, इट इज लाइक ग्रेजुएशन लेवल पे। जैसे कई लोग करते हैं ना एमएससी मैथमेटिक्स में, फिर बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स में, उसके बाद पीएचडी भी मैथमेटिक्स में आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं, डॉक्टरेट, ग्रेजुएशन। तो निराकार रूप भगवान का ग्रेजुएशन लेवल है। उसके आगे भगवान को जानना है तो नेक्स्ट लेवल है, उसके आगे जानना है भगवान कौन है वास्तव में, साकार है, तो 3rd लेवल है, फाइनल लेवल। तो जो ग्रेजुएशन लेवल को बोलते हैं उसको बोलते हैं भगवान ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति शब्द सुना है? ब्रह्म ज्योति शायद सबने सुना होगा। हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो ब्रह्म ज्योति है। वो ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज। किस लेवल का है? ग्रेजुएशन लेवल। उसके बाद कई लोग बोलते हैं भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे, भगवान तो कण कण में है परमात्मा, हम तो भगवान परमात्मा तक ही मानते हैं कि सबके हृदय में। वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, एमएससी या एमएससी जो भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन। अल्टीमेटली और जानना पड़ेगा। तो जो भगवान को भगवान बोलते हैं कि भगवान साकार है, वो एक पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है, वो पीएचडी लेवल है और फाइनल लेवल है।
तो पहले वाले लोग बोलते हैं भगवान ब्रह्म है या ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। दूसरे वाले लोग बोलते हैं भगवान परमात्मा है या सुपर सोल है। लेकिन जो तीसरे वाले लोग हैं बोलते हैं भगवान है, सुप्रीम पर्सन है। सुप्रीम, आप भगवत गीता में बार बार ये वर्ड आएगा, हर 2-3 पेज बाद आएगा। भगवान सुप्रीम पर्सन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और जो परमात्मा और जो ब्रह्म वाला रूप है वो उन्हीं के अंदर है, उन्हीं का आंशिक रूप है। मतलब आपने ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति को समझा, मतलब भगवान को पार्ट में समझा। उसके बाद भगवान को परमात्मा समझा, भगवान को और 50% समझ लिया। और जब भगवान को भगवान सुप्रीम पर्सन माने, इसका मतलब आपने भगवान को 100% भगवान के रूप में। ये आया सबको समझ में आया? फिर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एक्चुअली फाइनली बताता, भगवान मीन्स है, हमने पहली क्लास में इसका डेफिनेशन बताया था, भगवान पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है। और वही भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में या सुपर सोल के सब में हृदय में निवास करते हैं। और वही परमात्मा से जो, वही भगवान से जो लाइट निकलती है उसको बोलते हैं ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। तो अगर भगवान समझ में आ गया तो पता लगेगा कि बाकी दोनों चीज उन्हीं से निकलती, उन्हीं से ओरिजिनेट होती, वो उससे इंडिपेंडेंट नहीं। वो अगर वो हम उसको जैसे नीचे के 2 लेवल माने, इसका मतलब हमको पूरा नॉलेज नहीं है। भगवान मीन्स सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वही अपने आप को सब जगह विस्तार करके सबके हृदय में, सारे संसार के सारे जीवों में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और उनसे जो लाइट निकलती है, उनके आसपास ऑरा बना रहता है जैसे भगवान के आसपास, वो उसको ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो जो खाली ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति को भगवान बोलता है उसको पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि वो तो लाइट निकलने वाली लाइट है, उसी को भगवान मानना है। लाइट तो भगवान नहीं, उनके शरीर से निकल गई लेकिन वो भगवान नहीं। जो बोल रहा है कि भगवान खाली परमात्मा सबके हृदय में, उसको भी पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि वो भगवान परमात्मा तो उनका अंश है, वो विस्तार कर रहे हैं। लेकिन जो बोलता है कि भगवान है, भगवान एज ए पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है, वही फिर आगे उसमें तीनों चीज है। भगवान बोलेंगे तो उसमें तीनों चीज आ गई, ब्रह्म भी इसमें आ गया, परमात्मा भी आ गया, और भगवान तो है ही सुप्रीम पर्सन। इसलिए भागवत गीता एस्टेब्लिश करता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भागवत गीता में बार बार आएगा, हिंदी वाली बुक में आएगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इंग्लिश वाली बुक में आएगा बार बार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इसका मीनिंग समझ पाएंगे? ये किस बात, भगवान की बात हो। हम ब्रह्म और परमात्मा उनके निकले हुए, उनसे निकले हुए, उनसे विस्तार, उनका अंश। लेकिन कई संस्था ऐसे गई कि हमको आप ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, एक लाइट का ध्यान कीजिए, एक लाइट का ध्यान कीजिए, उसको मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, हमने लाइट का ध्यान किया, लेकिन लाइट के ध्यान करने से हमें कुछ भी नहीं मिला। 2 घंटे बाद लाइट का ध्यान करके हम चले गए, वो मेडिटेशन हुआ। शरीर के लिए हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इज बियॉन्ड बॉडी, शरीर के ऊपर की बात करें। जो शरीर की बात करें वो मटेरियल लाइफ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोल, वो स्पिरिचुअल लाइफ। ये भी मैं अंतर बताता हूँ, बॉडी एंड सोल है। कई जगह कोई स्पा के बाहर लिखा रहता है कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर, ऐसा उसका एड लिखते हैं। कहीं पे रेस्टोरेंट के इधर भी लिखा रहता है। तो बॉडी एंड सोल कीपिंग टुगेदर, ये हमारे हाथ में नहीं है। कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो हमारा जो भी जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर बॉडी और सोल तो अलग अलग होना पड़ेगा। तो हम जब बॉडीली डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, एजुकेशन के द्वारा या किसी पोजीशन के द्वारा या सोशल मीडिया में, इसमें वी आर डेवलपिंग आवर बॉडी, मीन्स हम अपने आप को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं भौतिक बात। बट सोल की डेवलपमेंट की तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं है। सो हाउ कैन वी कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर? अगर सोल के डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं है, देन दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? बॉडी तो डेवलप हो रहा है और सोल पीछे रह जाएगा, करेक्ट? तो दोनों को डेवलप करने के लिए, दोनों को टुगेदर रखने के लिए तो हमको साथ साथ में डेवलपमेंट करना।
तो एंटायर वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड हमको एक ही चीज में एजुकेट कर रहा है, हाउ टू अपलिफ्ट द बॉडी, हाउ टू गेट ऑन टू बॉडीली प्लेटफॉर्म। सोल के बारे में हमको कोई बताता नहीं। क्यों सोल के बारे में क्यों नहीं बताता है? एनी रीजन? कोई गैस? Because that cannot be seen. ओके, दैट कैन आल्सो सीन। ओके, और It's a very Yes. small part of the body. सॉरी, It's a very small part of the वेरी body. स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, गुड। और Just the thing to which you can feel yourself. आप कोई सामने वाला में भी नहीं देख पाएगा. बट उसका भी तो सोल है। It is for yourself. So, but why people don't Connect. give this knowledge? Soul conversation. Many people don't have that knowledge. Sorry, Many people don't have that knowledge. many people don't have that knowledge. Okay. Any other reason? Yes. Yes. On. Speak anything. जिसको जो आता है. Why we come to the stage where we are studying the ABCD of Bhagavad Gita? इस स्टेज पे आके हमारी जो भी एज है 30, 40, 50, जिस भी एज में आके यहाँ पे अभी भगवद गीता की ABCD सीख रहे हैं, which is a basic book, elementary book, nursery level की book है ये spiritual life. So why people don't take this knowledge? Nursery Because level we का are very knowledge. busy with our with this Maya around us, so we don't realize the importance of moving our soul. Okay. Because we are self-exploring things around right now since we're nursery. Sorry. We are still exploring things to understand. But why this knowledge not given? This opportunity to explore is given in the initial stage. Why it's not given? Generally not given. Because everyone is more concerned about bodily material, not the. So why? Because consistency नहीं रहेगा movies वो मतलब वो एक बार पाना and that being consistent तो वो सामने जो दे रहे हैं उनको maybe they give only when they see कि they are consistent. Okay. Actually, spiritual knowledge gain इस material world में spiritual knowledge अगर दिया जाएगा तो then ये material चलेगा नहीं, products बिकेंगे नहीं, material के सारे products बिकेंगे नहीं, because spiritual नॉलेज देने से तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, बट मटेरियल नॉलेज, बॉडीली नॉलेज देने से बहुत फायदा हो। सारे प्रोडक्ट्स तो बॉडी की कंजम्पशन के लिए, कॉस्मेटिक्स ले लो, कॉस्मेटिक्स लिया, ज्वेलरी लिया, क्लॉथ्स लिया, फूड आइटम्स लिया, रेस्टोरेंट लिया, सब कुछ तो बॉडी लेवल पे। अगर सोल का नॉलेज देंगे तो उनको क्या बिकेगा? कुछ भी नहीं बिकेगा। But हमारे घरों में तो संस्कार तो रहते हैं, our grandparents they are doing everything. बट दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट। जो भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी तो बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस है, मटेरियल वर्ल्ड से इसमें रह रहे हैं, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो इस सोसाइटी में तो सोसाइटी में सारा जो एडवर्टीजमेंट और ये सब कुछ होता है, अभी टीवी में हो रहा है, नेट में हो रहा है, पहले भी तो होता था पोस्टर, इसके थ्रू उसके थ्रू किसी न किसी फॉर्म में ऑल दिस थिंग्स है। सो अगर स्पिरिचुअल नॉलेज दे दिया जाए तो सोचा कि इसकी रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाएगी। जिसका स्पिरिचुअल नॉलेज होगा उसके रिक्वायरमेंट्स तो बॉडीली रिक्वायरमेंट्स तो कम हो जाएंगे। सो इससे क्या मटेरियल चलेगा नहीं, मार्केटिंग होगा नहीं, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, क्योंकि जिसका स्पिरिचुअल नॉलेज होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो लेट पीपल रिमेन फुलिश, society look and consume more and more so that सबका प्रोडक्ट बिकेगा, सब कुछ मार्केट चलेगा और मटेरियल इस प्रकार से चलता रहेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज दिया तो इंटेलिजेंट हो जाएगा। एक्चुअली भागवत गीता में जाएगा कि those who are spiritual and only those are people are intelligent। लिखा एक श्लोक ऐसे, श्लोक है 10th चैप्टर का 10th श्लोक है। भगवान बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो मैं उसी को इंटेलिजेंस देता हूँ।
जो मेरी भक्ति करते हैं उसको मैं इंटेलिजेंस देता हूँ। इसका मतलब बाकी जो इंटेलिजेंस दे रखी है वो यूजलेस इंटेलिजेंस है, वो इस जगत को चलाने के लिए। लेकिन जो रियल इंटेलिजेंस है, भगवान को समझने के लिए रिक्वायर रियल इंटेलिजेंस, दैट इज गिवन बाय द लॉर्ड। उनको दी जाती है जो भगवान की भक्ति करने में इंटरेस्टेड है, जिनके अंदर फेथ रहता है, श्रद्धा रहती है, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भगवान लॉर्ड गिव मोर इंटेलिजेंस। ये 10th चैप्टर का 10th श्लोक आप तो देखें, ददामी बुद्धि होगा, तो मैं उनको बुद्धि देता हूँ। सो इसलिए व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज से इंटेलिजेंट हो जाएगा तो वो फिर वेरी प्रूडेंटली सारी चीजों को मैनेज करेगा। मटेरियल वर्ल्ड में रहेगा तो बहुत प्रूडेंटली, बहुत इंटेलिजेंटली करेगा, और उसको वो सारी चीज सीख जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सीख जाएगा, क्योंकि अभी क्या करना है, उसको स्पिरिचुअल लाइफ में डेवलप करना है, और भौतिक जगत में कितना एक्सपेंडिचर करना है, क्या करना है, कैसे सेवन करना है, सारी चीजें वो भी सीख जाएगा। और बाकी he or she will get more respect in the society। अभी वो लोग समाज में लेविशली स्पेंड करते हैं कि लोग हमारा यश करें, पीपल फेम हो, ये हो, लेकिन वो सारी फेम 2-4 दिन के बाद जो भी खर्च करते खत्म हो जाती है। बट जो स्पिरिचुअल लाइफ में आता है उसकी फेम बढ़ती जाती है, डे बाय डे उसकी फेम बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज फॉर इंटेलिजेंट पीपल एंड मोर एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ इज फॉर फूलिश पीपल। तो ना चॉइस इज आवर्स कि हमको इंटेलिजेंट बनना है या फूलिश। इसलिए जो है, अगर लोग फुलिश नहीं होंगे तो फिर कैसे संसार कैसे चलेगा, मटेरियल कैसे चलेगा। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज दिया नहीं जाता ग्रेजुअली, डे बाय डे। जैसे आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स को संस्कार, वो तो सब नेक्स्ट जनरेशन वाले तो भूल जाएंगे क्या संस्कार के, पेरेंट्स से भी देंगे। पेरेंट्स को एबीसीडी नहीं पता तो आगे क्या किसको देंगे? पेरेंट्स को एबीसीडी नहीं पता। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एबीसीडी पढ़, इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, अब जो है ये जो वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ है, वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ है, ये हमें कहीं पे भी, कहीं साइंस की बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सब जगह हमको इधर बाय, क्या बोलते हैं वर्ल्ड का बाय एक्सप्लोजन, बाय चांस, अलग अलग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये थ्योरी होते हैं। डार्विन थ्योरी में बोलते हैं ह्यूमन बीइंग कम फ्रॉम मंकीज, ऐसा बोला गया। डार्विन थ्योरी कहाँ से आया? मंकी से आया। तो मंकी से आया तो मंकी अभी भी क्यों है, फिर वो ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं बन गए? अभी भी मंकी घूमते, इतने सारे चले जाएंगे तो मंकी वृंदावन में चले जाएंगे, जैसे मंकी घूमते हुए, वो अभी भी क्यों मंकी से ह्यूमन बीइंग? तो ऐसी स्पेक्युलेटिव थ्योरी दी जाती है। बट भागवतम और भागवत गीता बोलता है दिस मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम 24 एलिमेंट्स, और उसमें फिर आत्मा और परमात्मा अलग है। 24 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से? पंचभूत सबने बचपन से सुना है, कौन से आते हैं? जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये अर्थ वाटर फायर एयर इथर। पृथ्वी जल आकाश को इथर भी बोलते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु का सबने बचपन में सुन रखा होगा, 5 एलिमेंट का। इसके बाद 5 सेंसेस 10। तो 5 जो है इसको बोलते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, या हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। या गिनते जाना, पहले तो 5 बता दी। पंचभूत में किसी कोई डाउट है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसको यहाँ पे लिस्ट किया अर्थ वाटर फायर एयर। इसके बाद अगले 5 ज्ञानेंद्रियां। क्या है 5 ज्ञानेंद्रियां? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। ये ज्ञानेंद्रिय, इसको ज्ञानेंद्रियां या इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। क्यों? क्योंकि इससे हमको नॉलेज मिलता है इस जगत के बारे में। हमको देखने से पता लगता है और सामने बिल्डिंग है, ये ग्लास है, ये आंख से पता लगता है। सुनने से पता लगता है ये कौन बोल रहा है, हमारा रिलेटिव से, फ्रेंड है, क्या है, उससे फोन पे आवाज आती, उससे हमको श्रवण करने पता लगता है ये कौन है, कौन, सुनने से पता लगता है। देन उसके बाद है और नोज से स्मेल करके पाते हैं, बैड स्मेल, गुड स्मेल, ये नोज से। स्किन से पता लगता है हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, ये स्किन से फीलिंग। और उसके बाद टंग से क्या पता लगता है? टेस्ट, डिफरेंट टाइप टेस्ट, सॉल्टी, सावर, स्वीट, बिटर, ये अलग अलग टेस्ट।
इसलिए इनको बोला जाता है नॉलेज एक्वायरिंग। इनसे हमको इस जगत के बारे में ज्ञान मिलता है। एग्री? सब लोग एग्री करते हैं इसमें? ज्ञानेंद्रियां, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्ञानेंद्रियां, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। इसके बाद है वर्किंग सेंसेस, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, ये सब जो है वर्किंग सेंस, कर्मेंद्रियां बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रियां। हैंड्स, लेग्स, ये कर्मेंद्रियां। इसके बाद कितने हो गए अभी? 15 हो गए। 15 हो गए। नाउ इंद्रिय विषय, लाइक आंख से क्या देख सकते हैं हम? रूप या फॉर्म। कानों से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, श्रवण या शब्द, साउंड। नोज से स्मेल, स्किन से टच, और टंग से टेस्ट। ये शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद, ये जो है इस। तो कितने हो गए? 20। ये इंद्रिय विषय बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये 20 हो गए। ये सब चीजें चाहिए इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग हमको ही बनाने के लिए। देन ये 20 हो गए। देन हमने बीच में लास्ट वीक बताया था 3 और चीजें होती हैं। मन, बुद्धि, अहंकार बताया, याद है? सूक्ष्म शरीर या चेतना, लास्ट टाइम इधर बताया था। चेतना किससे बनी रहती है? आपकी डायरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा चेतना, जो लास्ट क्लास में आया था। मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये चेतना भी बोलते हैं, शिक्षण भी बोलते हैं। 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 23 हो गया। एंड देन अनमैनिफेस्टेड, इसको बोलते हैं महत्तत्व, बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तत्व। जो टोटल एनर्जी है, ये 24 एलिमेंट हैं, इससे ये जगत बनता है। किसी भी आपको साइंस बुक कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खाली भागवतम, भगवत गीता में 24 तत्व हैं। लेकिन इसके साथ और किसकी जरूरत है इसको लाइफ देने के लिए? आत्मा की और परमात्मा, जीव और भगवान। तब जाके ये बॉडी पूरा कंप्लीट होगा और ये मटेरियल वर्ल्ड भी पूरा। ठीक है? तो मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 20 एलिमेंट्स प्लस 2 आत्मा और परमात्मा। 24th में 24th क्या है? महातत्व। महातत्व क्या है? ये तो हमको सबको समझ में आ गया था। महातत्व क्या है? इंटायर फोर्स, शक्ति, जो टोटल मटेरियल एनर्जी है, जो टोटल मटेरियल एनर्जी, उसको बोलते हैं महत्व। इट्स लाइक किचन में आपने कुकिंग का सारा सामान रख दिया, फ्लावर है, स्पाइसेस है, ऑयल है, ये राइस है, सारे दाल और सब चीजें रख दी। अब जो कुक आएगा वो क्या करेगा? इनको लेके वो कुकिंग करेगा, बनाएगा, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, लाइक चपाती, राइस, दाल, ये सब फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये तो इस मतलब खाना बनाने वाला नॉर्मली हम किसको बोलते हैं? किसने खाना हमको दिया? अगर पूछा जाए किसने हमको खाना दिया, लास्ट में किसने हमको खाना दिया, या किससे खाना किससे बना, किसने दिया हमको खाना, तो क्या बोला जाएगा? नॉर्मली कुक ने हमको खाना दिया, कुक ने बनाया। बट कुक ने तो बनाया, उसके पहले रॉ मटेरियल कौन लाया? मम्मी आ रही है। ठीक, रॉ मटेरियल में मम्मी पापा कोई भी लाया, रॉ मटेरियल वो लाए और उसके बाद कुक ने खाना बना के दिया। तो लोग नॉर्मली कुक को जानते हैं, उसके पीछे किसने दिया वो नहीं जानते। तो आगे वाला काम जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं, सृष्टि की रचना, किसी से पूछा जाए कौन करता है सृष्टि की रचना? है ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी को सारा मटेरियल किसने सप्लाई किया? भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी भगवान नहीं, कृष्ण। उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए भी जब भी पहले भी था कि प्रभु किसी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने कुकिंग किया, ब्रह्मा जी लाइक कि कुक, उन्होंने सृष्टि को बनाया, लेकिन पीछे रॉ मटेरियल किसने दिया? भगवान ने दिया। रॉ मटेरियल सप्लाई किया, उसके बाद में जैसे घर के ऑनर ने कुक को रॉ मटेरियल तब जाके कुक ने बनाया, लेकिन हम समझते कुक ने ही सब कुछ बनाया। तो इस तरीके से जो है
ये सृष्टि की रचना होती है। सारा रॉ मटेरियल ये भगवान देते हैं और ब्रह्मा जी इससे अलग अलग शरीर बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स, डेमिगॉड्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, ये सारी चीजें 84 लाख चीजें इससे बन जाती है। ये सब कुछ रॉ मटेरियल, ये जो भी आप देख रहे हैं इसमें ये कंप्लीट रॉ मटेरियल, इससे सारी सृष्टि की रचना। इसमें किसी को कुछ कमी दिख रही है? और यहां तक का सारा रॉ मटेरियल 24th एलिमेंट, इससे हम लोग भी बनते हैं, सारे जीव बनते हैं, पूरी सृष्टि मटेरियल नेचर भी इससे बनती है। पूरा क्रिएशन इन सबसे एलिमेंट्स होता है। ये भगवद गीता में 2-3 श्लोक में सारा कवर हो जाएगा, लेकिन हमको एक बेस फाउंडेशन पता नहीं है, 2-3 श्लोक में वहां पे जल्दी में कवर हो जाएगा। इससे सारी चीजें बनती है। तो हमको याद रखना है 24 एलिमेंट्स, और बहुत याद रखना बहुत इजी है। 5 तो हमने बचपन से पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 तो वैसे ही हो गए। मन बुद्धि अहंकार 18 हो गए, मन बुद्धि अहंकार, और 5 इंद्रिय विषय भी, जो जैसे आईज के लिए देखना, ईयर्स के लिए सुनना या साउंड, मुंह के लिए, टंग के लिए टेस्ट करना स्वाद, और नोज के लिए स्किन के लिए स्पर्श, टच, एंड नोज के लिए स्मेल। ये 5 तो 20 तो ऐसे ही याद रह जाएंगे, और 3 और मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, और 24th जो अनमैनिफेस्टेड है, मतलब टोटल मटेरियल एनर्जी, और फिर 25th और 26 तो सबको पता ही, आत्मा और इस प्रकार से पूरा क्रिएशन। ठीक है, तो ये सब भागवत गीता में। Any question before we wind up? तो भी सब लोग ब्रह्मा जी बन सकते हैं। क्रिएशन के आगे कैसे किस चीज हमें पता लग गया कौन कौन सी आइटम चाहिए क्रिएशन के लिए। इसमें से ये जो सारे 24 हैं, ये डेथ के साथ साथ इसमें ये जो 20 है, 20 तक पूरे खत्म हो जाते हैं। डेथ के साथ साथ 20 आइटम्स खत्म हो जाते हैं। तो डेथ के बाद क्या बचेगा? 21, 22, 23 बचेगा हमारे। 21, 22, 23 बचेगा, प्लस 2 और कौन से? आत्मा और आत्मा, वो हमारे साथ में। तो ये सारी चीजें डेथ के बाद में ये सारी चीजें जाती हैं, और फिर जाके किसी दूसरी बॉडी में जिसमें 20 ऑलरेडी हैं, उसमें जाके ये एंटर करें। फिर से कितने हो गए? वही 24 + 2 26 हो गए फिर से। तो घूम के कौन से जा रहे हैं आइटम्स? घूम के जा रहे हैं 21, 22, 23 एंड 20 जो 25 और 26 आत्मा। ये क्या गए? दूसरी जगह पे गए, वहां पे 20 ऑलरेडी हैं, तो वहां पे जाके एंटर किया, तो फिर से वहां पे 26 आइटम्स हो, और फिर व्यक्ति नया जीवन जीता। तो नया लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है, डॉग का भी हो सकता है, कैट का भी हो सकता है, लायन का, टाइगर का, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल का हो सकता है, इसका फिश का हो सकता है, कुछ इंसेक्ट का हो सकता है, कॉकरोच का हो सकता है, और किसी का भी ट्रीज का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसमें जाके एंटर। पर ये रहेंगे, सब में रहेंगे, हर बॉडी में ये एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये जो हमें किस लिए पढ़ना है कि ये भगवान का कंट्रीब्यूशन हमारे इसमें सब में, हाउ लॉर्ड इज क्रिएटेड दिस एंटायर मटेरियल। अभी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप बिफोर एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, हम क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में जान रहे हैं। जैसे बोला था ना, किसी से रिलेशनशिप बनाना हो क्या करना पड़ेगा? पहले उसका इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो भगवान क्या क्या करते हैं उसके बारे में, भगवान के बारे में हम ये चीज जाने। हाँ,
we trying to understand the greatness of the Lord. भगवान कितने महान है, तब जाके हम उनका रिस्पेक्ट कर पाएंगे कि भगवान कितने महान है। अभी हमको जब ज्ञान नहीं तो हम क्या सोचते हैं भगवान ने क्या किया मेरी लाइफ में, मैंने तो सब कुछ तो मैंने किया। बोलेंगे आपका एग्जिस्टेंस ही भगवान ने बनाया है, आपको तो आपका एग्जिस्टेंस ही भगवान ने बनाया सारी चीजें। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने वो बिल्डिंग मैंने किया, मैंने इतना किया, ये मैंने पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिया, सब कुछ बनाया, सारी बातें कर लेंगे, उसको बोलेंगे कि पहले आपको किसने बनाया। तो ये लॉर्ड ने सारा किया, ठीक है। इससे व्यक्ति का फॉल्स ईगो कम होगा और उसको एक्चुअल रियलिटी पता लगेगी, सो दैट he or she can start appreciating the role of Lord in our life. जब धीरे धीरे ऐसा बिल्डअप करेंगे, हम भगवान के बारे में जाने, फाइनली विल रीच टू द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड, कि ओ हमारी लाइफ में इतना कंट्रीब्यूशन है भगवान का, इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना, बाकी तो किसी के लाइफ में कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन है इतना, सो व्हाई शुड वी लव द गॉड। पहले तो रिस्पेक्ट पे आएंगे, ग्रेटनेस समझेंगे, रिस्पेक्ट पे आएंगे, करें फाइनली वी शुड लव। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना करते हैं, 6 o'clock। सो थैंक यू वेरी मच। आज का थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में था, बट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज थी, फाउंडेशन थी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।